hello students, welcome back to the economics class. So children, we are doing the chapter rural development and today we are going to finish this chapter. We will be doing the last topic of this chapter and the topic is organic farming. Okay, you all are aware of the term organic food, organic vegetables, because nowadays people are getting more and more aware about the uses of organic food. You all know that organic food is something which is better than the food that is grown traditionally. Means जो organic food है that is grown using organic inputs and the other farming और मतलब जो non organic food है वो कैसे grow किया जाता है using chemical fertilizers, pesticides, sprays etc. which are harmful not only for the human body but to the environment also. So in today's class we will be discussing in detail organic farming as a topic of rural development, क्योंकि हमने 4 टॉपिक्स किए अब तक. पहला था रूरल क्रेडिट, 3 टॉपिक्स किए. रूरल क्रेडिट, फिर हमने किया रूरल मार्केटिंग, उसके बाद हमने किया नॉन फार्म एक्टिविटीज और लास्ट टॉपिक जो रूरल एरियाज में ही इम्पॉर्टेंट है, रूरल डेवलपमेंट में करना इम्पॉर्टेंट है, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ पार्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, तो रूरल एरियाज को डेवलप करना है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज करनी पड़ेगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग that relies on the use of organic inputs for cultivation. So this is that type of farming, that system of farming which is totally different from conventional farming. Conventional farming मतलब जो ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग करते आए हैं, स्प्रेज, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करके. तो it is totally different because it is because this type of farming uses organic inputs for cultivation. No chemicals will be used. ठीक है, पर याद रखना एक बात कि organic farming doesn't mean discarding the chemical fertilizers. It means improving the soil health so that जो हमारी soil है, because soil is a resource. Soil is a resource और soil की fertility retain करना बहुत ज़रूरी है. जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, जो कन्वेंशनल फार्मिंग है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को कम करते हुए सॉइल की हेल्थ को खराब कर देती है. और सॉइल की हेल्थ अगर खराब होगी तो वो जो लैंड है वो क्या हो जाएगा? इनफर्टाइल. तो अल्टीमेटली वो जो इनफर्टाइल लैंड है दैट विल बी नो लॉन्गर ऑफ यूज टू ह्यूमंस. ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इट डजंट मीन सिंपली डिस्कार्डिंग द केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स. इट मीन्स इम्प्रूविंग द सॉइल हेल्थ फॉर द लॉन्ग टर्म. और लॉन्ग टर्म से क्या मतलब है? सस्टेनेबल फार्मिंग. टॉपिक का पूरा नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो मतलब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ कैसे रिलेट किया गया है कि सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करना सो दैट सॉइल एज अ रिसोर्स कैन बी इवन यूज्ड बाय future generations. What is sustainable development? You have done this many times in your previous classes. Sustainable development is that kind of development where the resources are used in such a way that even future generations can use them. तो आज हम जिस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं वो किस तरह की डेवलपमेंट है? वो अनसस्टेनेबल है. इट इज नॉट गोइंग टू सस्टेन फॉर द फ्यूचर जनरेशंस. पर धीरे धीरे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है तो पूरे प्लांट करो ट्रीज. तो हम ये सब इन्वायरमेंट के चैप्टर में डिटेल में कर लेंगे. फॉर नाउ इट्स इनफ. ओके, सो लेट्स डू इट. आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम हियर. In the recent years, there is a considerable rise in awareness of the harmful effects of chemical-based fertilizers and pesticides. So people are becoming more and more aware regarding the repercussions of using chemical fertilizers and sprays for growing the crops. Conventional agriculture relies heavily on chemical fertilizers and toxic pesticides which enter the food supply, penetrate the water sources, harm the livestock, deplete the soil and devastate natural ecosystems. So you need to pay attention now कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज से सिर्फ जो हमारे खाने के लिए जो भी हम
यूज़ कर रहे हैं चीज़ें, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, जो भी चीज़ के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स की हेल्थ के लिए ही डेंजरस नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारे रेपरकशंस हैं जो इन केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ की वजह से हो रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे कि हमने सॉइल हेल्थ की बात की, तो वो पेस्टिसाइड्स जब हम स्प्रे करते हैं क्रॉप्स के ऊपर, तो वो धीरे धीरे सॉइल के अंदर चले जाते हैं, जिससे सॉइल starts becoming infertile. When the soil becomes infertile, it leads to soil pollution. You can also call it land pollution. ठीक है? When the same soil is eroded, जब वो इरोड होके पानी में किसी वाटर बॉडी में चला जाता है वही सॉइल, तो वो पानी जब लोग यूज करते हैं तो अगेन उससे ह्यूमन हेल्थ को नुकसान हो रहा है। वही क्रॉप्स जिस देखो जो एनिमल्स हैं, कैटल है स्पेशली, बफलोस, काउस एक्सेट्रा, दे फीड ऑन दिस, जो क्रॉप्स में जाके वो फीड करते हैं, उनको फॉडर वगैरह दिया जाता है, वो सब वहीं से आता है। उसके ऊपर स्प्रे किया तो अल्टीमेटली एनिमल्स ने, कैटल ने उसको खाया तो उनको भी नुकसान। तो इससे क्या होता है, जो सप्लाई चेन है, फूड सप्लाई चेन, वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती है केमिकल फर्टिलाइजर्स की यूज से, एंड अल्टीमेटली the ecosystem is disturbed and it is not an environment friendly technique. Which one? Conventional farming, ठीक है, जहाँ पे fertilizers का यूज होता है, ठीक है। So efforts have been made to evolve technologies which are eco-friendly and are essential for sustainable development. One such eco-friendly technique is organic farming. देखो सबको पता है कि आजकल ऑर्गेनिक चीज़ों की डिमांड कितनी बढ़ रही है, हर चीज़ में बोला जाता है यूज ऑर्गेनिक, यूज ऑर्गेनिक, है ना। आप एक एलोवेरा जेल की बात कर लो तो बोला जाता है नेचुरल एलोवेरा जेल को यूज करो, नेचुरल कोकोनट ऑयल को यूज करो, ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल को यूज करो, ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज करो, फ्रूट्स ऑर्गेनिक लो, वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक लो, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड दे आर नॉट इजीली अवेलेबल। क्या आपका कैन यू इजीली बाय ऑर्गेनिक फ्रूट्स वेजिटेबल्स? नो, इजीली अवेलेबल ही नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। तो डिटेल में करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, यू कैन यूज दिस डेफिनेशन आल्सो, और इवन दिस वन इज बेटर, राइट। ऑर्गेनिक फार्मिंग is a form of agriculture that relies on techniques such as crop rotation. Crop rotation क्या होता है, जब same land पे different crops are planted. For example, pulses, then wheat, then rice, then again pulses, then wheat, then rice, या उसके बाद चेंज कर लिया, तो इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। एक ही क्रॉप में एक ही लैंड पे डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करना, उससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग दैट रिलाइज ऑन टेक्निक सच एज क्रॉप रोटेशन। ग्रीन मैन्योर मीन्स काउ डंग केक, उसको ग्रीन मैन्योर बोलते हैं। Compost is what? Compost is a natural fertilizer which is made using kitchen waste, grass, ठीक है। तो compost यूज करते हैं ऑर्गेनिक फार्मर्स, ठीक है। एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मीन्स जो पेस्ट कंट्रोल सिस्टम है वो बायोलॉजिकल होता है, ना कि पेस्टिसाइड्स के अकॉर्डिंग, ना कि पेस्टिसाइड्स के द्वारा, ठीक है। The method avoids the use of synthetic chemical fertilizers in genetically modified organisms. So organic farming is a process of producing safe and healthy food. So it's very obvious implication that organic farming से जो food produce होता है that is tastier, healthier as compared to the food that is generated through conventional farming. मैंने बहुत बार सुना है कि organic vegetables are far more tasty than other vegetables. Dal also, ठीक है। In short, organic agriculture is a whole system of farming that restores, maintains, enhances the ecological balance. Obviously, जब हम spray नहीं use करेंगे, ह्यूमन के ऊपर तो उसका असर अच्छा होगा ही होगा, एनिमल्स के ऊपर भी अच्छा होगा, सॉइल की हेल्थ इंप्रूव होगी, सॉइल इरोजन जब होगा तो वाटर बॉडीज में जो सॉइल जाएगी वो बिल्कुल प्योर होगी, वाटर बॉडीज में वाटर पोल्यूशन
पोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, वाटर बॉडीज में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स को कोई नुकसान नहीं होगा, बिकॉज वी ऑल आर बायोटिक बीइंग्स, तो हम सब इकोसिस्टम के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इससे इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करता है, ठीक है। There is an increasing demand for organically grown food. Very obvious implication again, there is an increasing demand. जैसे कि मैंने अभी बताया, हर चीज बोलते ऑर्गेनिक यूज करो आज के टाइम में, है ना। To enhance the food safety throughout the world. Now let's do the benefits. Very simple. First benefit, economical farming. You need to understand this very carefully. जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें ना पेस्टिसाइड्स, ना फर्टिलाइजर्स, ना स्प्रे, कोई इंसेक्टिसाइड्स, कुछ नहीं यूज होता, कोई भी ऐसी चीज, कोई स्प्रे नहीं यूज होती जो कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। और जो फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, स्प्रेज हैं, दे आर एक्सपेंसिव, इनकी एक कॉस्ट होती है जो फार्मर को बेयर करनी पड़ती है। अब क्योंकि फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, वो ग्रीन मैन्योर यूज कर रहा है, कंपोस्ट यूज कर रहा है, तो उसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली केमिकल फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में कम होती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो कॉस्ट लगती है वो कम होती है। तो फर्स्ट बेनिफिट क्या हुआ कि इकोनॉमिकल फार्मिंग मीन्स इट इज अ कॉस्ट फ्रेंडली वे ऑफ फार्मिंग, ठीक है। वी कैन रिप्लेस केमिकल फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक इनपुट्स। सेकेंड, generates income through exports. Now you need to understand this very carefully. मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो भी फूड प्रोडक्शन होती है दैट इज एक्सपोर्टेड बाय इंडिया, एंड ऑब्वियसली एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे तो फॉरेन करेंसी ज़्यादा आएगी एंड दैट इज गुड फॉर द कंट्री, ठीक है। फॉरेन ट्रेड इम्प्रूव होगा इंडिया का। अब बाहर वाली कंट्रीज में क्यों नहीं बन सकती ऑर्गेनिक चीज़ें, क्यों नहीं बन सकती? बन सकती हैं। इंडिया में एक बेनिफिट है, इंडिया में क्या है कि इंडिया में देयर इज अबंडेंस ऑफ लेबर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का यूज़ होता है। इंडिया में लेबर बहुत है बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है, तो इजीली ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो लेबर चाहिए वो इकट्ठी हो सकती है इंडिया में। सो दैट इज वाई इंडिया specializes in organic farming, thereby increasing exports to other countries. Third, provides healthy food. Very simple. Nutrition value is better of organic food. Source of employment. Organic farming employs huge number of people because it is a labor intensive farming. मैंने अभी बताया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलता है। सेफ्टी ऑफ इन्वायरमेंट, अब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत सेफ है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस, ठीक है। दैट वाज अबाउट बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। नाउ नेक्स्ट टू व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ लेस पॉपुलर टेक्निक ऑफ फार्मिंग. It is not very popular amongst the farmers because we people are always reluctant to changes. We don't like changes, so farmers are comfortable doing conventional farming. They are not ready to explore organic farming and the challenges which are related to organic farming, ठीक है। So it's a very less popular technique and farmers are not very willing to adopt this farming technique, ठीक है। बहुत कम farmers हैं जो organic farming करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका रीज़न भी है, रीज़न ये है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना उसका जो आउटपुट होता है वो कम होता है। स्प्रेज की वजह से, फर्टिलाइजर्स की वजह से आउटपुट बहुत अच्छा ग्रो कर जाता है, मतलब जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो यील्ड है पर हेक्टेयर वो लो रहती है, यानी कि प्रोडक्शन इतनी ह्यूज नहीं होती। तो इसके कारण आप बोल सकते हो कि इतने रिलक्टेंट हैं फार्मर्स। सेकेंड, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज। नाउ इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग का दूसरा चैलेंज है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज किया जाए, ठीक है। तो मेन इसका जो कारण है ना वो ये है कि पीपल आर रिलक्टेंट, ठीक है। एक्सपेंसिव है, रिलक्टेंट भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, इतनी मार्केटिंग फैसिलिटीज़ नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आई थिंक पूरे फरीदकोट में शायद एक ऑर्गेनिक स्टोर होगा, ठीक है।
तो पीपल दे डोंट नो मच एंड दे डोंट नो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट, ठीक है। सो मार्केटिंग फैसिलिटीज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मार्केटिंग चैनल्स नहीं है इतने ज़्यादा, क्योंकि ग्रो करने वाले भी इतने नहीं हैं, ऑर्गेनिक फूड को ग्रो करने वाले भी इतने नहीं हैं। थर्ड इज लो यील्ड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग में यील्ड काफ़ी लो रहता है, आउटपुट काफ़ी लो रहता है, तो फार्मर्स स्पेशली स्मॉल फार्मर्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट, शॉर्ट फूड लाइफ। ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो भी होती है उसकी शेल्फ लाइफ कम रहती है, यानी कि वो फूड जल्दी खराब हो जाता है एज कम्पेयर टू द फूड प्रोड्यूस यूजिंग फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। द फूड हैज अ शॉर्टर शेल्फ लाइफ, जल्दी खराब हो जाता है, जल्दी पैरिश हो जाता है। लास्ट इज लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स। नाउ दे सेइंग जैसे आजकल ऑफ सीजन क्रॉप्स बहुत ग्रो होने लग गए हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स ड्यू टू स्प्रेस, ठीक है। विंटर वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन समर्स, समर वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन विंटर्स। वो क्या है? ऑफ सीजन क्रॉप्स। तो ऑफ सीजन क्रॉप्स जो है वो किस तरह से ग्रो किए जाते हैं? आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो किए जाते हैं। पर ऑर्गेनिक फार्मिंग तो कोई भी आर्टिफिशियल टेक्निक यूज ही नहीं करता, इट्स ऑल नेचुरल, राइट। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग में द चॉइस ऑफ क्रॉप्स, ऑफ सीजन क्रॉप्स जो है वो काफ़ी कम रहती है। मतलब इसमें ऑफ सीजन क्रॉप्स कौन कौन से प्रोड्यूस कर सकते हैं उसमें इतनी चॉइस अवेलेबल नहीं है, या आप बोल सकते हो ऑफ सीजन क्रॉप्स ग्रो करने में काफ़ी चैलेंज आता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द बेनिफिट्स and the challenges of organic farming, and that's all for the chapter. And lastly I would like to throw light on what we did. तो सबसे पहले हमने किया रूरल क्रेडिट। हमने देखा कि दो तरह के क्रेडिट सोर्सेज हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, एंड हाउ रूरल पीपल रिलाई ऑन द इनफॉर्मल sources of credit like money lenders. Then we did about rural marketing. We discussed how the farmers face challenges when they have to sell their production, ठीक है, इन द मंडीज। तो क्या उनको प्रॉब्लम्स आती हैं प्राइस के रिलेटेड, इंफॉर्मेशन के रिलेटेड। उसके बाद हमने किया नॉन फार्म एक्टिविटीज। नॉन फार्म एक्टिविटीज मीन्स द एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम farming that the farmers are adopting nowadays in the rural areas like dairying, fishing, horticulture, animal husbandry, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को रूरल एरियाज में एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। कैटल फार्मिंग कर रहे हैं, डेयरिंग कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा रिलायंस अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर ही है। और लास्ट में हमने किया ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के चैलेंजेस तो हमने तब कर ही लिए। तो इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो लेवल है वो काफ़ी कम है, मींस जिस स्केल पे प्रोडक्शन हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, वो बहुत कम है। अभी वी नीड टू एक्सप्लोर मोर ऑफ इट, वी नीड टू एंगेज द फार्मर्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, बिकॉज उसके अपने बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो ये सारा हमने इस चैप्टर में, एंड दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।